runs, maximum sixes, maximum emotions, maximum pressure. लेकिन अंत में भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में डिफेंडिंग चैंपियन जो बन के आए थे वो दिखाया कि जब मैटर बहुत बड़ा हो गया था, मुकाबला तेज गति से हाथ से फिसल रहा था, टू अरेस्ट द स्लाइड और उन प्रेशर मोमेंट्स में आखिरी क्षणों में हीरो बनने का मौका एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह। इनका ऋण भारतीय टीम कैसे उतारेगी? हार्दिक पांड्या का वो 19वां ओवर, 499 रन एक वर्ल्ड कप के मैच में। वेल प्लेड इंग्लैंड। इस मुकाबले को एपिक बनाने में इंग्लैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हरभजन सिंह, युजवेंद्र चहल, 2 वर्ल्ड कप विनर साथ में। आई नो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी बात करनी है, लेकिन इस समय भजुपा विल टेक दिस। सांस में सांस आई है सांस में सांस आई है और ये मैदान सारा जो सुन पड़ गया था ना, अब जाके उनमें सब में जान आई है, क्योंकि कमाल का मैच हुआ यार। ऐसा मैच कि मुझे समझ नहीं आता कि आज की तारीख में कितने रन जो हैं वो सेफ हैं। अगर आप 250 बना के सेफ नहीं हो, ये गेम कहाँ जा रही है? ये गेम कहाँ जा रही है? कोई मुझे एक्सप्लेन करे। ये वो मैदान है जहाँ रन लगते हैं, बट ऐसे इतने रन, दिस इज क्रेजी। दिस इज मतलब ऑलमोस्ट ये रन चेज हो गए थे। ये तो अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो क्या होता। बट इंडिया विल टेक इट ऑफ कोर्स। नाउ इट्स डन एंड डस्टेड, बट ये इसको थोड़ा सा पचाने के लिए ना समय लगेगा। बट द मेन थिंग इज इंडिया इज गोइंग टू अहमदाबाद। इंडिया इज प्लेइंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल, विच इज अ बिग रिलीफ। नाउ 10 मिनट पहले ये सारा क्राउड शांत था। ये सारे हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको टीवी पे आवाज नहीं सुनती, बट हमने यहाँ देखा बिल्कुल सारे जितने थे शांत हो गए थे बिल्कुल। बट सो ग्लैड टू हियर देम अगेन, सो ग्लैड टू हियर देम अगेन। इस समय हमारे पीछे सचिन तेंदुलकर स्टैंड में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती के गाने चल रहे हैं। लेकिन चलते हैं, बहुत कुछ है बात करने को इस पोस्ट शो में, लेकिन पहले संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच इस सेमीफाइनल के। The player of the match award for tonight goes to none other than Sanju Samson for his 89 from 42. Mr. Ishan Chatterjee, the CEO of Sports Geostar, will present the award to Sanju. Thank you very much, Mr. Chatterjee. Sanju, back-to-back half centuries, back-to-back player of the match performances in a World Cup semi-final. What does this mean? Yeah, feels really great. To be honest, I kind of knew that I got some form going from the last game, so I thought I need to continue. I think it's not easy. You find form at the crucial games for your country, so I thought big game. I need to make most out of how I am batting. So I gave myself an extra time. I think calculated my innings a bit. I prepared really well, and I think things came off nicely. Got a bit lucky to start off, and then I think I just wanted to carry on. I think knowing playing in Wankhede, we know that no score is stoppable here, so I just wanted to get as much as possible runs as possible. Even 250 looked like chaseable here, and England played really well. I think all credit goes to how they batted, and we really had a great semi-final. You talked a little bit about how your innings progressed there. How much more different is it chasing well as you did against the West Indies and now setting this total up for your team? Yeah, as I told before, I think you need to, assess the conditions. I think we have played a lot of cricket here in Wankhede. As I said before, chasing becomes a bit easier here. They won the toss, put us into bat, so we knew after the way we batted, I think the way myself and Ishan batted, the partnership which we had for after Abhishek got out, I thought that I think 250 should be, possible here. So I think that's what we were talking about in the dressing room as well. So yeah, very happy how the team turned up today, and all credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world-class bowler, once in a generation bowler, I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. So I think if he didn't bowl that way and the death overs, I think I would not be standing here. So all credit goes to the bowlers, how they backed themselves in the tough conditions. Spoken as a true leader. What does this crowd mean to you guys tonight? Oh wow, I think as you have witnessed here, sir, I think it's an unbelievable feeling to play in Wankhede right from childhood. I think the way people support actually both the Indian team and also the England team, I think there was real supporters of the cricket as well. So really enjoy playing here, but I think we wanted to put in a positive result for them, but very happy results actually made them happy today. I know a number of fans and supporters will be asking 97 and 89. You haven't quite gotten the 100. Does that matter to you? I think not at all, sir. I think 100, I think
100 actually you can't actually score 100. It actually comes in the process of you can't actually, it's not a test game, it's not a ODI game where you can go up and down. Once you have got the start, you're batting first, there is no other way. You just have to keep going hard. And once you, I think, end up on the right side, who knows, I think, which amount of runs I'm getting. So I'm very happy to get whatever I'm getting and very happy to contribute on the winning side for my country. And the country is very happy for you, Sanju. Thank you very much for your Thank you, time. sir. Very well done. Thank you. एक दशक की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं संजू सैमसन। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में 97 प्लेयर ऑफ द मैच, 89 इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच। लेके चले भारत को अहमदाबाद में। इस प्रतियोगिता का कैंपेन था हिस्ट्री को रिपीट करना है, हिस्ट्री को डिफीट करना है, और उसका एक पैमाना था। किसी भी टीम ने कभी बैक टू बैक टाइटल्स नहीं जीते हैं। यूजी भारत पहली टीम है जो डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पे आई है और फाइनल में पहुंची है। अगर आएंगे इस समय ये दूसरे एंड पे टीम है, बट आई एम गोना शो यू सम फैन जो हमारे पीछे यहाँ पे हैं। अभी उनको बताते हैं, कैमराज ऑन यू। इन्होंने अभी जोर शोर से चांट लगाई हरभजन सिंह के लिए, युजवेंद्र चहल के लिए, लेकिन जब टीम का माहौल थोड़ा डगमगा रहा था तब भी इन्होंने बड़ी जोर से नारे लगाए। गणपति बप्पा मोरिया की आवाजें आ रही थी। ये वानखेड़े के मैदान पे आज इतिहास के पन्नों में मुकाबला सुनिश्चित हो गया है एंड इंडिया वन स्टेप अवे हिस्ट्री रिपीट और डिफीट करने से। क्या झलकियां बारबेडोस की थी यहाँ पे यूजी। आखिरी 5 ओवर इंडिया अंडर प्रेशर, यहाँ रन जरूर ज्यादा थे लेकिन विकेट पाटा थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अंत में शिवम दुबे, ये प्रेशर को जैसे अब्सॉर्ब किया कि ये इस टीम के ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा बात होगी। नहीं, बिल्कुल। आप जसप्रीत बुमराह को ऐसे ही इंडियन ट्रेजर नहीं कहते जो रोहित शर्मा ने 2024 में यहाँ पे वानखेड़े में बोला था जब ट्रॉफी यहाँ पे थी। और वो बंदा ना कमाल है यार, उसके ना हाथ धोगे पैर धोगे ना पीने चाहिए भाई। वो बंदा ना एज वही बंदा हमेशा खड़ा होता है 99 पॉइंट, मैं कहूँ 100% वही खड़ा होता है। आज बुमराह ना होते ना तो इंडिया फाइनल में ना होती। एंड 19th ओवर हार्दिक फर्स्ट बॉल पे 6 जाना, पता है कितना प्रेशर, लेकिन हार्दिक ने 20वां ओवर डाला था 2024 में, मैच जितवाया था इंडिया को। तो उसे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है भाई। ये ना खजाना है भाई, ये लोग खजाना है। 2 सीनियर खिलाड़ी अपना पूरा एक्सपीरियंस वहां झोंक दिया कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इस समय पे क्या सबसे बड़ी जरूरत है, वो किया। हर गेंद सटीक यॉर्कर, और वो प्रयास इतना अच्छा था। जब दिल होना तो सारी चीजें सही हो जाती है, जब घबराहट होना तो कुछ नहीं होता है। तो ना हार्दिक घबराता है ना बुमराह घबराता है, बस इनको देख के बल्लेबाज जरूर घबराते हैं। हमें कोई नहीं चाहिए भाई, हमें जसप्रीत बुमराह है। राष्ट्रीय संग्रहालय में नेशनल ट्रेजर, जैसे कहा कि ये जो कर्ज है जसप्रीत बुमराह का, ये हम कैसे अदा कर पाएंगे भारतीय क्रिकेट के फैंस के तौर पे। ही कीप्स ऑन गिविंग एंड ही कंटिन्यूज टू, इसीलिए हमारे प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ही हैं। सही है प्लेयर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय म्यूचुअल फंड्स। सही है। आप सामने देखेंगे उस मकाम पे मुकाबला खड़ा है जहां पे कोई और टीम होगी, हर गेंदबाज के सामने आप वो बैट चलाना चाहेंगे। प्रयास यहां भी होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह इन क्रंच मोमेंट्स में भी ये सम्मान जो है ना, ये बादशाहत जो है वो कमाई है जसप्रीत बुमराह ने। दिस एक्यूरेसी भज्जुपा, 13 साल का एक्सपीरियंस, जीनियस की परिभाषा शायद कोई और है ही नहीं। ये 18वां ओवर है बुमराह का। बिल्कुल, और इनको आप कल बोलेंगे ना तो कल फिर ये रिपीट कर देंगे। ये जसप्रीत बुमराह है, और ये जिस दिन से यहाँ मुंबई इंडियंस के खेमे में आए थे तब से लगता था कि ये इनमें कुछ खास गुण है, और ये अगर नहीं होते, जैसे यूजी ने कहा, आज नहीं होते ना तो आज काम हो गया था, फिर इंग्लैंड अहमदाबाद जा रही होती। तो जसप्रीत बुमराह है तो पॉसिबल है। हर बार आप किसी से उम्मीद करें, ये क्रिकेट है, ये T20 का फॉर्मेट है, इसमें उतार चढ़ाव शायद एक सत्य है। उसके बावजूद उतना ही शायद ये भी सत्य वचन है कि ये सारे जो मापदंड है कि कुछ भी हो सकता है, ये जसप्रीत बुमराह पे लागू नहीं होते, क्योंकि अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एक ही चीज होगी। नहीं, बिल्कुल, इन्होंने ना इतना कहर, इतना डर बिठा रखा है बैट्समैनों के अंदर कि आप ट्राई करो तो कर लो, आप ट्राई। वो उनका बैट नहीं उठा, वो सिर्फ कर रहे थे कि ये ओवर किस तरह निकल जाए, इस ओवर में विकेट ना दें। लेकिन उसी ओवर के कारण लास्ट में 6-7 रन बचे हैं ना, सिर्फ उसी ओवर के कारण बचे हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि बुमराह को भाई आप भूल ही जाओ। और आज तो बापू ने जो कैचे पकड़ी हैं, अक्षर पटेल की उन कैचेस पे आएंगे, और उसमें शुरुआत है हैरी ब्रूक। जसप्रीत बुमराह की स्पेल की ये पहली गेंद थी। अब आपकी आउटस्टैंडिंग, मतलब आप देखेंगे 4 ओवर उन्होंने देखे कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और ब्रूक्स पता है कि स्टेप आउट करते हैं या हाथ छोड़ते हैं, बट वहां पे आके उतनी धार भी तो होनी चाहिए ना कि जहां बॉल आप स्लोअर वन गिराना चाहते हो वहां बॉल वो गिरे, और लेकिन वो उतना
तरीके से गिरे कि बल्लेबाज मजबूर हो जाए कि सिर्फ हाथ छूट जाए आगे की तरफ। ये पहली बार नहीं, इन्होंने बहुत बार ऐसा किया था। रायन रिकल्टन को भी ऐसे फंसाया था कि पिक नहीं होता इनका स्लोअर वन, आर्म स्पीड कम नहीं होती है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, एक बार फिर सबको उन्होंने वेकअप कॉल भेजी है कि भाई जस्सी है तो ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर आज जस्सी नहीं होता तो आई डोंट नो कितने रन जो है जतिन सेफ है, क्योंकि 250 रन में आपका मैच इतना पास आ जाए। क्रेडिट टू देम, दे प्लेड वेल, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह माइनस अगर इस मैच से कर दें तो रिजल्ट कुछ भी और हो सकते थे। और एक जो कहावत है ना यार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, तो ये खुद ही को इतना बुलंद कर चुके हैं। इनके पास वो ताकत है, इनको पता है कि ये क्या कर सकते हैं। वो यॉर्कर पहले दिन से वो इतनी सटीक है, स्लोअर वन और सटीक है। थोड़े जब आए थे भारी थे, अब देखिए क्या फिट बंदा है। और जब गेंदबाजी करने आता है ना, ये पूरा मैदान नहीं पूरा भारत कहता है यार जस्सी है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, जस्सी है तो 6 रन भी डिफेंड कर देंगे। ये ऐसा गेंदबाज है। कितने गेंदबाज है जो कहते हैं कि विकेट पे आपको 2 या 3 गेंदें लगती हैं उस विकेट की पेस, उस पे सही लेंथ परखने में, लेकिन 4 ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह है। और क्या ऐसा लगा जो पहला डिसमिसल था हैरी ब्रुक का, बजूपा ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, रायन रिकल्टन को ऐसे आउट किया था जैसे वो दूरदर्शी होते हैं ना जोशी, उन्होंने सिर्फ बॉल नहीं प्लान की, उन्होंने शायद पूरा डिसमिसल देख लिया है कि कैसे होगा। इज ही ऑलमोस्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आगे की देख के एग्जीक्यूट करते हैं उसको। बिल्कुल, क्योंकि तभी इनको सबसे अलग ना एक बॉलर माना जाता है। इन तुलना में ना तो इनके आसपास कोई नहीं है। जैसे आप मुझे स्पिन का ग्रैंड मास्टर मानते हैं ना, ये हैं फास्ट बॉलिंग के ग्रैंड मास्टर असली, जो जल्दी पिक करते हैं हर चीज को। यहाँ पे बहुत खेले हैं, लेकिन उस चीज को डिलीवर करना कि मैं स्लोअर बॉल डालूंगा, लेकिन वो एक सही जगह पे गिरना, वो ड्रिफ्ट होना, वो डिप होना, वो बहुत जरूरी है। और वही आपने पहली बॉल पे देखा कि भाई मैं पहली बॉल से रेडी हूँ आज। और एक सिंपल चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ही लुक्स फॉर विकेट। देयर आर पीपल हु लुक टू जस्ट बोल द ओवर व्हेनेवर ही इज ऑन। तो इसका काम है कि मैं विकेट कैसे लेता हूँ, ये विकेट सोचता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा विकेट भी मिलते हैं। वो विविधताएं तो सबके पास है, लेकिन वो जिस कलात्मक तरीके के साथ वो दिमाग लगा के कि कब कौन सा अपना हथियार यूज करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पहला ही बॉल टिकाने पे आके स्लोअर वन डालना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है और नया गेंद है। और उसके बाद भी आज पूरे मैच में जितने रन पड़े हैं, जसप्रीत एक तरफ बाकी एक तरफ दुनिया। फैंस कभी मौका लगे तो जसप्रीत बुमराह की प्रैक्टिस देखने आना। कई बार बहुत इंडियन प्लेयर्स ने कहा है कि गलती से नेट्स में अगर इनकी एक बॉल मिडल हो गई ना, तो अगली आप जानते हैं कान के पास सीटी बजाते आएगी। मैं खेला हूँ ये, इसको थोड़ा सा अगर मिडल कर दिया ना बॉल, ये बकियों की तरफ आया था सीधा। मेरे को तो बोल के जाना पड़ता था, जस्सी मैं कोई ओपनर नहीं हूँ, नंबर 3 नहीं हूँ, 4 नहीं हूँ, मैं तेरे जैसे ही हूँ नीचे वाला, मेरे को आराम से ही रख। पर ये बताता है ना बजूपा की इंस्टिंक्ट को ऐसे ट्रेन किया है कि सामने बैटर ने मेरे सामने ये शॉट लगाई, मेरी टीम का है किसी और टीम का फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बॉलर हूं एंड आई एम गोइंग टू बीट यू। मैं यहाँ पे आया हूँ प्रैक्टिस करने, अपनी प्रैक्टिस। बल्लेबाजों को मैं प्रैक्टिस करवाने नहीं आया हूँ कि आप बॉल मिडल करते रहिए और बड़े शॉट लगाते रहिए। अपना काम मैं जो करने आया हूँ वो अचीव करके जाऊंगा, विच इज टू बॉल द राइट एरिया। अगर यॉर्कर करना है, लेंथ करना है, बाउंसर करना है, तो सब करता है। कप्तान तैयार हो गए बातचीत के लिए, सूर्य कुमार यादव द विनिंग कैप्टन, लेकिन हैरी ब्रुक को बहुत गर्व होगा जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम लड़ी है। आइए चलते हैं कैप्टन चैट की ओर। We get a chance to hear from the captains now. Congratulations to India. They progress to the final of this ICC Men's T20 World Cup, a win by 7 runs. Harry Brook, England's captain, is here with me. Harry, just on reflection, if we start from the top, conditions here look very good. There's no dew whatsoever. As you reflect on the toss and choosing to field as you did as a team back in 2024, what are your thoughts? Yeah, we just thought that there might have been a little bit of hold early on with the pitch being fresh, and yeah, we were expecting probably a little bit more spin in the first innings, but yeah, it slid onto the bat nicely. They played extremely well, and all of our lads should be so proud of the way that we played tonight and throughout this competition. It didn't look as though the expectation of the standards in the field were where you would have loved it tonight. Would that be correct? Yeah, absolutely, and I'll hold my hands up and say that I made a big mistake there, dropping Samson, and yeah, catches win matches, that old famous phrase, and unfortunately it just didn't go our way in the field tonight. Another day it comes off. From a bowling perspective, how did you see it? Were there any things on reflection that you would have been hoping that it would have gone better with the ball? Just misexecution here and there. We probably didn't execute as well as we could have done.
the Indian batters are some of the best batters in the world, and if you miss-execute to some of them, it goes out of the park. So we probably didn't execute as well as we could have done. But like I say, we gave it a red-hot crack, and unfortunately we were on the wrong side. Yeah, you were in it there for a long time there with the bat almost right down to the end, and Jacob Bethel. Yeah, he was absolutely unbelievable. I think he's going to earn some serious money in his career, and he's going to have a hell of a career with England. And he's showed the world how good he is tonight. Unfortunately, we were on the wrong side, but that innings is an extremely big positive to take away from this competition. And to see him go out there in the manner that he did, taking it to them from ball one, and like I said, showing the world what he can do. As you reflect on the tournament as a whole, having had to go over to Sri Lanka and be here, come back here, what are your thoughts? I think we had a good tournament, to be honest. Like I said a second ago, we should be extremely proud of the way that we played. I said the other day, we're never out of games, and that proved again tonight, chasing 250. Other teams could have just folded and crumbled away, but we stuck to it the whole game, and we gave it a red-hot crack, like I said, and unfortunately we were on the wrong side of it tonight. Harry, thank you very much for your time, and all the best as you go forward. Thank you. Cheers. Big thanks to England's captain Harry Brook. Surya Kumar Yadav will join us. Yeah. Sky, what's the overriding feeling heading into the final now against New Zealand? I mean, it's an unbelievable feeling. Obviously, playing in India, leading such a wonderful side, and World Cup happening in India, going to Ahmedabad, playing that final. I think it's a special feeling for all the boys. From a batting perspective and the way that your team went about it, Sanju Samson, etc. I think he knew what he wanted to do as soon as he went into bat. Even when the wicket fell, he knew the wicket was good, so he kept pressing the pedal. And the way he batted, I think the team required that from him. It was all due from all last year, all the hard work he was doing, and it was a special knock today. Did you see 250 as being where you needed to be? Oh my God, I just told Harry that how much more do we need to score against you guys. But then at the end of the day, it was a good wicket. The way they batted, I don't want to take credit away from them as well. I think they were always in the game, always in the chase. But the way Bumrah, Arshdeep and all the other bowlers, they pulled the game, I think it was unbelievable. Yeah, Sanju Samson, when he was here a few minutes ago, said he would gladly have given the man of the match medal to Jasprit Bumrah. Absolutely. I mean, you know what